Hello, good morning all. Say good morning. Today we are going to see lesson number 14 called Conservation and Preservation of Resources. So all of you take out your books and see Conservation and Preservation of Resources. Chapter number 14. Okay. Now the word conservation means what? Conservation means prevention, संरक्षण करना. हमें क्या करना है? Protection करना है. Conservation and preservation means protection. Get it? Prevention and protection. We are going to see the conservation and preservation of resources. Resources का मतलब क्या होता है? Who going to tell me? Resources. Resources words have been done in your last chapter, I think so. Yes. कोई भी चीज को वापस से यूज कर सकते हैं. No, that's called reuse, not resources. So our topic name is, sit down. Topic name is conservations. हम conservations करेंगे और protection, preventions and protections of resources. हम किसका protection और preservations करेंगे ये lesson में? तो resources का. Resources का मतलब होता है जैसे कि land, air, okay, mountains, that is useful for us, which is naturally get it from earth. हमें जो naturally मिलता है, nature से मिलता है, वो सभी किस में आएगा? Resources में. So today we are going to see the meaning of resources first. Resources का meaning क्या है और उसका conservation और protection कैसे करना है? Understand? Okay. So resources means the natural substance found on the earth and useful to human being are called resources. First we are going to see the meaning of resources in deeply. आपने चैप्टर नंबर 13 के वन में लिखा है एक्सरसाइज. हाँ वो नेक्स्ट लेक्चर में. Natural substance found on the earth and useful to human being are called resources. Resources means what? Natural substance found on earth and useful to human being is called you can see here natural substance found on the earth. जो natural substance हमें मिलते हैं earth में. substance मतलब ऑब्जेक्ट, जो भी पदार्थ है जो हमें कहाँ से मिलते हैं? फाउंड फ्रॉम द अर्थ, जो अर्थ से मिलते हैं. एंड यूजफुल, बट वो यूजफुल भी होने चाहिए हमें. ओके जैसे कि अर्थ में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, बट जो यूजफुल है दैट फॉर ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग मीन्स व्हाट? इंसान के लिए. ओके ऑल लिविंग थिंग, ऑल ह्यूमन बीइंग्स, यूजफुल टू ऑल ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड रिसोर्सेज. गेट इट? यस मैम. So natural substances found on the earth and useful to human being are called resources. Who going to try to say the resources definitions? Yes. Don't see. Huh? Natural substance found in earth is called resources. You said right, but you have missed this one. Useful to human being. Okay. Yes. Natural substance found on earth and useful for human beings is called resources. Yes, because in earth we get so many natural substance, but some of them are useful. कुछ ही ऐसे हैं जो हमें useful है, so हम उसे क्या बोलेंगे? Resources. Understand? The next one. So ऐसे कौन से natural substance रहेंगे जो हमें nature से मिलते हैं और वो हमें useful भी है? Yes, Hardik.
plants, trees, and animals. Yes, correct. We get air, water, plant and animals, minerals. These all are included in resources. Resources are the backbone of our national economy. नेशनल इकोनॉमी की क्या है? रिसोर्सेज बैकबोन है. जैसे हमारा जो बैकबोन है, रेल की गिट्टी पे ही हम पूरे हम कैसे रहते हैं, वैसे ही हमारे नेशनल इकोनॉमी का, हमारे इकोनॉमी के लिए बैकबोन कौन है? हमारे रिसोर्सेज. सो यू विल गेट टू नो कि रिसोर्सेज कितने इम्पोर्टेंट है. ओके, दे आर द पिलर ऑफ पावर एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल्स एंड द रिसोर्सेज आर पावर एंड द प्रॉस्पेरिटी. रिसोर्सेज हैव स्पेसिफिक फीचर्स एंड यूटिलिटी. एंड ये जो रिसोर्सेज है इसके क्या है? स्पेसिफिक यूटिलिटीज है. रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी. और ये जो रिसोर्सेज है हमें बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में मिलते हैं. सो हमें उसका यूज़ भी कैसे करना है? केयरफुली करना है. ओके, सो उसका यूज़ हमें नेक्स्ट पॉइंट में कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में देखना है. क्योंकि जैसे ही हम लोग को वाटर मिल रहा है, हम वाटर का कैसे भी यूज़ कर रहे हैं, सो हमें वैसे नहीं करना है क्योंकि वो लिमिटेड क्वांटिटी में आता है. Get it? So next point is type of resources. Next we are going to see type of resources. So resources के type क्या है? Resources are useful to us in many ways, directly or indirectly. Natural resources are useful to us in all activity taking from agriculture to industry and transportations. Natural resources such as vegetations and land are useful to us in a form of food. Yesterday I told you the meaning of vegetations. What is the meaning? Vegetation is related with, yes? Correct. Vegetation is related to food. Vegetables, plant, tree. Okay? And land is useful in a form of food, fuel and energy. Fuels, in fuel there are come oil, petrol. Okay? And energy. Resources are generally divided into two groups. Resources जो है वो two group में divided है. First group is called natural and second one is man-made. Okay? First one is natural and second one is man-made. Okay. So you will get to know, get to understand from the meanings. Natural means जो नेचर से मिलते हैं वो सभी इसमें आएंगे. एंड मैन मेड मीन्स दोज रिसोर्सेज विच हैव प्रोड्यूस्ड बाय मैन. ओके, दैट आर कॉल्ड दिस, दैट आर ऑल इंक्लूडिंग मैन मेड. सो land, water, mineral and forest are included in natural resources. Here it's come land, water, फॉरेस्ट. लैंड, वाटर, फॉरेस्ट जो हमें नेचर से गिफ्टेड मिल रहे हैं वो सभी नेचुरल है. ओके, एंड इट ऑल्सो फॉल्स इन टू कैटेगरीज. अब ये नेचुरल रिसोर्सेस है वो भी दो कैटेगरीज में बट रही है. ओके, फर्स्ट है बायोटिक एंड सेकेंड है अबायोटिक. अभी बायोटिक मीन्स व्हाट एंड अबायोटिक मीन्स व्हाट, दैट वी गोइंग टू लर्न हियर. लैंड, एयर, वाटर एंड सॉइल आर अबायोटिक. ओके, लैंड, एयर, वाटर ये नेचुरल के ही है, नेचुरल रिसोर्स में ही आते हैं, बट इसमें दो ग्रुप बनाए हैं. फर्स्ट है बायोटिक, अबायोटिक. अभी उन्होंने दिए हैं अबायोटिक. अबायोटिक का मतलब है दैट आर नॉट लिविंग बीइंग. ओके, लैंड, एयर, वाटर एंड सॉइल आर अबायोटिक बिकॉज वो क्या है? नॉन लिविंग बीइंग. वो फिर से रिप्रोड्यूस नहीं हो रहे, जितने हैं उतने ही है. ओके, जैसे कि हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग, उनका रिप्रोडक्शन होता है, वैसे ही ये अबायोटिक का रिप्रोडक्शन नहीं होता है. तो वो क्या है? नॉन लिविंग बीइंग है. तो वो किस में आएंगे? लैंड, एयर, वाटर एंड सॉइल आर अबायोटिक. उसे क्या बोलेंगे हम? अबायोटिक. अंडरस्टैंड? दैट्स कम इन लैंड, soil, air and water. Get it? What's come in abiotic resources?
नेक्स्ट वन है वेयर फॉरेस्ट एंड एनिमल आर बायोटिक रिसोर्सेज। फॉरेस्ट ये नेचर से ही मिल रहे हैं हमें, फॉरेस्ट एंड एनिमल्स, ये क्या है अबायोटिक, सॉरी ये बायोटिक में। बायोटिक में क्यों आएंगे? बिकॉज इनका रिप्रोडक्शन हो रहा है। फॉरेस्ट में जो प्लांट्स है वो फिर से उगते हैं, एनिमल्स है वो फिर से बनते हैं। ओके, दैट्स व्हाई वी विल कॉल, बिकॉज ये क्या है, नॉन लिविंग बीइंग है। ओके, दैट्स वी कॉल्ड इज बायोटिक। ओके, ये नेचुरल में ही दो टाइप आते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड। नेचुरल में ही दो टाइप आते हैं, दैट्स कम इन बायोटिक एंड अबायोटिक। अबायोटिक है वो नॉन लिविंग बीइंग है, उसमें लैंड, सॉइल, एयर, वाटर, मतलब जो इनमें है यही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है दो चीज़ों में। जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसे हम दो टाइप में बांटेंगे, बायोटिक एंड अबायोटिक। गेट इट? नाउ आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चन टू यू। हाँ, बायोटिक में कौन आएगा, अबायोटिक में? दोज हु डोंट अंडरस्टैंड आस्क अगेन। जिनको ये नहीं समझ में आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन। समझ में आ रहा है? यस है तो ही बोलो, नहीं आ रहा है तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन। Understand? Yes, ma'am. Yes or no? Yes, ma'am. You last bench? Understand? Okay. So tell me, first who going to tell me, don't see here, huh? Just going to tell me natural resources. Raise your hand. Only two? Natural में वो सब आ जाएंगे, बायोटिक भी अबायोटिक। Yes? Yes, correct. Down your hand. Yes. Yes. Now there are two groups. How many groups in natural resources? First one is biotic. Second one abiotic. Tell me biotic one. Biotic मतलब जो living being है। Yes, that's come in this who know forest and animals, and abiotic में land, soil, air, water. You just make it clear that biotic में living being आएंगे, abiotic में non living being आएंगे। वो भी किस में से हमें ढूंढना है? इन नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स के ही दो पार्ट है, बायोटिक, अबायोटिक रिसोर्सेज। ओके? Okay, sit down. Next we are going to see some industrial unit. अभी हमने सिर्फ इतना ही देखा है, we not discussed about the man-made. So going to discuss about the man-made resources. So you will get the idea. Man-made मतलब जो हम बनाते हैं वो resources. जैसे कि industrial unit, monument, art and social institutions are made man-made resources. So I'm going to write industrial जो unit होते हैं वो हमने बनाया है। Monument means what? Who is going to try to say? Monuments में क्या क्या आएगा? हाँ? Yes, correct. हाँ correct. Monument and social institutions जो भी हम बनाते हैं, that's we call monuments. Who's going to tell me a monument in गुजरात? गुजरात में कौन सा monument जो अभी फेमस है बहुत? करेक्ट, स्टैचू ऑफ यूनिटी। हाँ, वो भी क्या है? एक मॉन्यूमेंट है। इंडस्ट्रियल यूनिट जो भी मैनमेड है वो सब किस में आएंगे? इंडस्ट्रियल, मॉन्यूमेंट, आर्ट, ये मैनमेड में आएंगे। मैनमेड रिसोर्सेज जो हमने बनाए। गेट इट? सो ह्यूमन रिसोर्सेज आर इंक्लूड नॉलेज, इंटेलिजेंस, स्किल, हेल्थ एंड अदर क्वालिटीज फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स। अब ऐसे करोगे तो इसका थर्ड वाला ग्रुप भी बन जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा? जो भी हमारी क्वालिटीज है, हमारी स्किल्स है, वो सब ये रिसोर्सेज में आएगी। हाँ, जैसे कि हमारी क्वालिटी क्या रहती है? हमारा नॉलेज, हमारी इंटेलिजेंस, स्किल्स, हमारी हेल्थ, ये सब किस में आएगा? ह्यूमन रिसोर्सेज में आएगा। ओके, सो से नॉलेज, इंटेलिजेंस, स्किल,
found in human being. That's all called human resources. So we have learned about the natural resources, man-made resources, and third one is the human resources. Natural resource में कितने पार्ट है? 2 पार्ट. First one is biotic. Correct. Man-made में कौन से resources आएंगे? Human resources. हाँ, तो वो कौन से है? इंडस्ट्रियल यूनिट, मॉन्यूमेंट, आर्ट. इन ह्यूमन रिसोर्सेज इसमें क्या आते हैं? ह्यूमन रिसोर्स में पूरे ये सब क्या है? ये सब क्या है बड़ी? हमारी स्किल्स है, हमारी क्वालिटीज है. ओके, सो ये क्वालिटीज में कौन कौन सी क्वालिटीज है? नॉलेज, यस, इंटेलिजेंट एंड हेल्थ. ओके, these are comes in health resources. स्किल अलग है, इंटेलिजेंट उसके बाद कॉमन. मतलब और भी एक्स्ट्रा दिया होगा. हाँ, और भी जो स्किल है वो सब है. Now there are some resources which replenish मतलब फिर से भरते हैं, फिर से भरना themselves. Tree, leaves, animals and birds renew naturally. Replenish मतलब फिर से उगते हैं, जैसे कि trees के जो leaves है फिर से आते हैं. करेक्ट. बर्ड्स, उनका भी फिर से जन्म होता है. एनिमल्स, वो क्या है? रिन्यू नेचुरली, वो फिर से बनते हैं. रिन्यू नेचुरली. Thus forest and wildlife keep reproductions themselves at a certain time. फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है उनका भी क्या होता है? रिप्रोडक्शंस होता है. गेट इट? सो यू हैव अंडरस्टैंड. फर्स्ट पॉइंट वी हैव लर्न अबाउट द रिसोर्सेज एंड सेकंड वी हैव लर्न अबाउट द टाइप ऑफ रिसोर्सेज. अंडरस्टैंड? Resources means natural substance found on earth and useful to human beings are called resources. मतलब जो भी नेचुरल सब्सटेंस हमें मिल रहा है और वो यूजफुल भी होना चाहिए. ये वर्ड भी आपको मेंशन करना है, क्योंकि नेचर से हमें बहुत कुछ मिल रहा है बट उसमें से यूजफुल कम ही होते हैं. तो जो भी यूजफुल है वो नेचुरल रिसोर्सेज में आएंगे. नेक्स्ट वी हैव लर्न अबाउट द टाइप ऑफ रिसोर्सेज. उसमें हमने नेचुरल, मैनमेड और ह्यूमन रिसोर्सेज देखा. इन नेचुरल देयर आर बायोटिक एंड अबायोटिक. Get to understand all of you? Yes, sir. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. कंजर्वेशन करना मतलब क्या करना? प्रिवेंशन, उसका रक्षण करना. ओके, ये जो भी हमने टाइप देखे ये सभी क्या है? रिसोर्सेज है. और उनका हमें क्या करना है? उनका कंजर्वेशन करना है. ओके, सो यू गोइंग टू सी द कंजर्वेशन. सो आई एम गोइंग टू रब दिस वन. आपने पॉइंट आउट किया? Yes, ma'am. Okay, I'll give it to again जिन्होंने नहीं किया उनको. Next point is conservation of resources. conservation Resources. of resources. Natural resources are limited. जो भी natural resource है वो कैसे है? Limited है. While human needs are unlimited. But हमारी जो needs है वो unlimited है. जैसे कि हमें water मिल रहा है, वो वाटर लिमिटेड है, बट हम वाटर की ज़रूरत इतना, मतलब वाटर का यूज़ इतना कर रहे हैं कि वो अनलिमिटेड हो गया. अभी हमारी ज़रूरत अनलिमिटेड होती जा रही है. द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हैज़ ग्रेटली इंक्रीज over the last few years due to advanced technology development and population explosion. अभी population explosions और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से जो भी रिसोर्सेज का हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो बहुत बढ़ गया है. If we don't think seriously about the situations, we will have suffer adverse consequences. हमने अभी इसके बारे में सोचा नहीं तो क्या हो सकता है? हमें बहुत ख़राब सिचुएशन देखनी पड़ेगी. जैसे कि अभी सडनली देखो, यस्टरडे रेन हो गया. सीजन कौन सा है? सीजन इज विंटर इज गोइंग ऑन, बट फिर भी सडनली रेन फॉलिंग हो रही है. क्यों क्लाइमेट में चेंज हो रहा है? क्योंकि हम जो रिसोर्सेज है, जो नेचुरली हमें जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनका यूज़ कैसे कर रहे हैं? अनलिमिटेड यूज़ कर रहे हैं, कैसे भी यूज़ कर रहे हैं. तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं क्लाइमेट पे जाता है और वो फिर से हमें ही भुगतना पड़ता है. दैट वी आर गोइंग टू लर्निंग हियर. About this situation, we will have to suffer adverse consequences. That is why it is duty to all of us to preserve resources for future generation.
तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये जो रिसोर्सेस है उसको प्रिजर्व करना चाहिए, ओके, प्रोटेक्ट करना चाहिए. सम रिसोर्सेस आइदर रिप्लेनिश देयर शेयर्स ऑन देयर ओन, मतलब कुछ रिसोर्सेज रिप्लेनिश होते हैं, मतलब फिर से होते हैं, जैसे कि ट्रीज है फिर से बनते हैं, बर्ड्स है फिर से होते हैं, करेक्ट, ऑफ देयर ओन्स एज दे आर अनलिमिटेड. कुछ रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड है. सच रिसोर्सेज आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ओके, से रिन्यूएबल आते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज मींस लाइक फॉरेस्ट, सनलाइट, okay, and non renewable resources are those which cannot be reused or recreated once it is used as a such as petroleum, mineral, coal and natural gases. इसमें दो पार्ट आते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल में कौन आएगा, पेट्रोल. जैसे कि पेट्रोल एक बार कार में यूज हो गया तो यूज हो ही गया, उसका फिर से हम रीयूज नहीं कर सकते. तो सम मिनरल है, कोल है, नेचुरल गैसेस है, वो सब किस में आएंगे, नॉन रिन्यूएबल. अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज which cannot be reused or recreate once it is used as just petroleum, mineral, coal and natural gas. तो इसमें आपको याद रखना है पेट्रोलियम, अभी पेट्रोल खत्म ही हो जाएगा. हाँ, मिनरल, कोल एंड नेचुरल गैस. डोंट टॉक. मैम आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया था, बस हो गई. और रिन्यूएबल में कौन आएगा, फॉरेस्ट, बिकॉज फॉरेस्ट में कौन रहता है, प्लांट रहते हैं, प्लांट फिर से बनते हैं. और सनलाइट, सनलाइट क्यों आएगी रिन्यूएबल में, अनलिमिटेड है सन, और उसका फिर से हम लोग यूज भी कर सकते हैं. जैसे कि ऊपर क्या लगाते हैं, सोलर एनर्जी, उसका यूज भी सोलर पैनल्स, उसका यूज इस तरीके से भी कर सकते हैं. सो मैम सोलर कुकर भी आता है. हाँ, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कौन आएगा, फॉरेस्ट, सनलाइट. जस्ट कॉपी द पॉइंट, ओके. एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब कॉपी कर दो ये पॉइंट, फटाफट राइटिंग करो विथ लिसनिंग. एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कौन आएगा, पेट्रोलियम, मिनरल, कोल एंड नेचुरल गैसेस. हाँ हाँ चलेगा. अभी इससे थोड़ी जाएगी आने वाली है. डोंट टॉक. मैम आगे से मैं रीड करूँ. No. Resources are land resources, water resources, forest resources, agriculture resources, animal resources, mineral resources. ये resources main है, आपको याद रखना है बस resources कौन से है, ओके. जो main important resources है वो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. First who is going to tell me renewable resources and non renewable resources. इसे टर्न करके बताओ, ब्लैक बोर्ड मत देखो. Just 2 minutes read out the renewable resources. और ये प्रोनाउंस करने को आएगा, बोलो रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. ओके, सो रिन्यूएबल, हाँ केरासिन भी आ सकता है. मैं बोलूं, मैं फॉरेस्ट, सनलाइट और नॉन रिन्यूएबल पेट्रोल, कोल, केरोसिन, डीजल, natural gas. Okay, sit down. Yes. मैम नॉन रिन्यूएबल का पेट्रोलियम, गैस, नेचुरल गैस एंड कोल. Yes. एंड फिर डीजल एंड केरोसिन. Okay. Renewable में बताओ. Renewable. रिन्यूएबल में फॉरेस्ट, सनलाइट एंड विटामिन का ऑक्सीजन. Okay. एंड नहीं, ऑक्सीजन क्या है, डिपेंड है ना, प्लांट पे डिपेंड है. कुछ ज्यादा ही आगे चला गया. बस ओके. नाइस ट्राई. बट नहीं, वो मैन मेड है ना. यस, वो लिमिटेड होगा इलेक्ट्रिसिटी तो. हाँ, वो सन पे डिपेंड है, राइट. इस पे सैटेलाइट
बस अभी आप एक्स्ट्रा मत करो. हाँ CNJ भी आ जाएगी आपको. करेक्ट. Yes. जाना है. Go from this side. Okay. मैं नॉन रिन्यूएबल में एक और चीज भूल गई मुझे. चलो रिसोर्सेज में रिपीट आफ्टर मी. रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज. फॉरेस्ट. अरे रिपीट आफ्टर मी तो ये आपका पढ़ के हो जाएगा. से रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, एनिमल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज. ओके बस. इन एडिशन टू दिस द ह्यूमन बीइंग इज आल्सो अ रिसोर्सेज. इसके एडिशन में हम भी क्या है? रिसोर्सेज है. बिकॉज हमारा भी रिप्रोडक्शन होता है, राइट? और हम भी लिविंग बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है. हम भी नेचर का ही पार्ट है. दैट्स वी ऑल ह्यूमन बीइंग आर आल्सो भी. तो हमारा नाम कैसे होगा? ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेज हो सकते हैं. दे आर आल्सो क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज, retrieval distributions of the resources. First we are going to see the land resources. Our next point is the land resources. मैं बोलूँ? Reading करूँ? Yes please. Soil formation. The upper layer of the earth is surface on which vegetation usually grow is called soil. The soil is a thin layer made up of many particles on the earth as crust, small and large piece of rock, gravels, clay, organic steel are called a in its organic element, air and water are mixed and soil is formed in a context to farming to Okay, sit down. Okay, sit down. हाँ, so we are going to see resources. Resources में ये जो land resources है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. Yes. See, soil formation, the upper layer of the earth. Why are you standing? The upper layer of the earth is a surface on which vegetation usually grow is called soil. Soil means क्या? जो earth का upper surface है. Okay? This earth surface. You come here and sit here. हाँ, what happened? मेरे को नहीं चाहिए कुछ काम, इसको आगे भेजो. Come and sit here. The upper layer of the earth is a surface on which vegetations usually grow. Vegetation means related to tree, plants are grow is called soil. Soil किसे बोलते हैं? जहाँ पे क्या होता है, जो अर्थ का अपर सरफेस है, पूरा सरफेस है, जहाँ पे प्लांट ग्रो होते हैं, वो वाला सरफेस हम उसे कॉल करेंगे soil. Okay? The soil is a thin layer made up of many particles on the earth crust. Soil कैसे बनती है? Thin layer made up of many particles on the earth crust. Small and large piece of rock, gravel, clay, organic silts are called regolith. In it, organic element, air, water are mixed and soil is formed. In context to farming, the economic development of any country depends on the quality and type of soil. So, next resources and this explanation we will learn in the next